Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 6th of October 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about two important topics. The number one is about the diabetes. There is an editorial given in today's newspaper where the writer is pointing, or actually, the writer is comparing the diabetes disease with a ticking time bomb as the number of the cases of diabetes are increasing. And second, we'll be talking about the stubble burning. And third is the ED, which we have covered in our previous videos. You can check this topic there, right? So today is very a short discussion video because there is no much new news has been given. So utilize your this time by revising the previous current affairs, and I request all of you to complete your optional or start the revision of your optional because it is October. It is high time for all of you to start your the optional revision for your UPSC. Okay. Now let's start with the first thing, that is the diabetes mellitus. अब राइटर जो है उसको कंपेयर कर रहा है एक टिकिंग टाइम बॉम्ब से, तो उससे पहले हमको जो डायबिटीज है उसके बारे में समझना चाहिए कि डायबिटीज जो है क्या। पहली बात यहाँ पे बोला जा रहा है दैट डायबिटीज मेलिटस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इफ आई से दैट दिस इज योर डिजीज, if we divide or classify the disease in two parts, so it is either the communicable disease or it is the non-communicable disease, right? So you are having the two types of disease. एक होता है आपके पास communicable और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। जब हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, ये वो डिजीज होती है जो इन्फेक्ट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दैट मीन्स you can also classify it as a communicable or the infectious disease. Then the second category is your non-communicable, that is the non-infectious disease जो कि फैल नहीं सकती है। अब डायबिटीज जो है ये आपके पास इस कैटेगरी में आती है, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल, यानी ये एक जो है दूसरे में फैल नहीं सकती है। तो इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बट chronic that occurs when the pancreas, अब इसको समझते हैं होती कैसे। हम सबका जो ह्यूमन बॉडी है, we all have a gland, that is the pancreas gland, pancreatic gland जिसको आप बोलते हो। So this pancreas or the pancreatic gland secretes two types of the hormones. The number one hormone is your the insulin hormone, and the second hormone is your the glycogen hormone. What is the function of these two? They basically regulate the level of glucose in the human body. So if I talk about the diabetes, what happens in the diabetes is this insulin is not able to be produced by the pancreas, that is the number one, or the pancreas is able to produce the insulin, but our body is not able to use it. Getting my point? There are two types of the cases. That is why we say that is either the type 1 diabetes or the type 2 diabetes. The type 1 is that our body is not able to produce the insulin, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। और दूसरा केस क्या है कि ये जो इंसुलिन है आपकी बॉडी जो है प्रोड्यूस कर रही है बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। तो दिस इज द टाइप 1 एंड टाइप 2। So this is diabetes mellitus, a non-communicable but a chronic disease that occurs when the pancreas gland of the body is not able to make the insulin, or when the body cannot make a good use of the insulin. So insulin is a hormone that regulates the blood sugar or the glucose level by facilitating the cellular glucose uptake, regulating the carbohydrate, lipid and protein metabolism, and promoting the cell division and the growth. Insulin plays a crucial role in the metabolism and help the liver, muscle, and fat cell to store the glucose that body does not require directly, which can be used later by the body in the form of energy. अब अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज है, जिसको आप रोजमर्रा के जीवन में शुगर बोलते हो कि हमें शुगर हो गया है, तो उसके सिम्टम्स क्या है? नंबर वन, इट इंक्रीजेस, दैट इज योर हंगर इज इंक्रीजेस, और थर्स्ट इंक्रीजेस, then comes your the weight loss, the frequent urination, extreme fatigue, sore that don't heal,
द फ्यू कॉमन सिम्टम्स जो कि मेन में देखे जाते हैं, द सेक्स ड्राइव डिक्रीजेस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज देयर, पुअर मसल स्ट्रेंथ इज देयर. A few common symptoms found in the women are the urinary tract infection, the yeast infection, and the dry and the itchy skin. टाइप्स ऑफ डायबिटीज हमने एक बार इसको समझ लिया है, तो इसकी जो थियरी है वो देख लेते हैं. दैट इन दिस टाइप द बॉडी प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन, यानी आपकी जो बॉडी है उसमें या तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर बहुत ही कम लेवल पे आपका जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन हो रहा है. तो देयरफॉर a daily injection of the insulin is required for the body to maintain the blood glucose level. इसलिए किसी भी शुगर पेशेंट को आप देखते हो उनको डेली जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो नहीं रहा होता है या फिर बहुत कम होता है. इट कैन डेवलप एट एनी एज, बट मोस्टली ये चिल्ड्रन या एडोलेसेंस में होता है. देखो शुगर या फिर जो डायबिटीज है दो कैटेगरीज में होता है, एक तो बुढ़ापे में होता है और आजकल जो छोटे बच्चों में भी होने लग गया, या फिर जो टीनेजर्स है, एडोलेसेंस वाली एज है, तो ये केस उनमें ज्यादा मिलता है, तो उनको इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है. फिर है आपके पास टाइप 2 डायबिटीज. इन दिस टाइप द बॉडी इज नॉट एबल टू यूज द इंसुलिन दैट इट प्रोड्यूसेस. इसमें आपकी बॉडी यूज नहीं कर पाती है. मोस्टली ये जो आपके पास जो एज ओल्ड पीपल होते हैं उनमें ये कंडीशन ज्यादा देखी जाती है. फिर एक और कैटेगरी है, दैट इज द गेस्टेशनल डायबिटीज. कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, राइट, इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से. और इसको बोला जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी गेस्टेशन पीरियड के अंदर, जो प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर अगर कुछ होता है तो वो इसके अंदर आएगा आपके पास. तो इट इज ऑल्सो बी सीन दैट द गेस्टेशनल डायबिटीज may disappear after the pregnancy, but affected women or children are at increased risk of developing type 2 diabetes later in the life. Now, diabetes mellitus versus the diabetes insipidus. डायबिटीज मेलिटिस और इंसिपीडियस में क्या डिफरेंस है? जनरली जो डायबिटीज आपकी हो रही है वो है आपके पास डायबिटीज मेलिटिस, और बाद में जो आपके पास होगी वो है आपके पास डायबिटीज इंसिपीडियस. तो मेलिटिस की बात करें, इज व्हाट मोस्ट पीपल मीन बाय डायबिटीज व्हेन योर पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, जो कि कॉमनली हमने अभी देखा उसको डायबिटीज मेलिटिस बोला जाता है. बट जो इंसिपीडियस होता है वो एक बहुत ही रेयर कंडीशन है. इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है. अगर किसी पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडिस है, यानी उनकी जो किडनी है उसके थ्रू जो यूरिन का जो प्रोडक्शन है, एक्स्ट्रा जो यूरिन है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पास होने लग जाता है. सो द लॉस ऑफ फ्लूइड मेक्स द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज इंसिपिडिस व्हिच आर रियली थर्स्टी. तो यहाँ पे चार तरीके की डायबिटीज इंसिपिडिस है: सेंट्रल, नेफ्रोजेनिक, डिप्सोजेनिक और गेस्टेशनल. सरकार के इनिशिएटिव्स, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टारगेट, जिसमें जो ओबेसिटी मोटापा जो बढ़ रहा है और उससे ये बचाएगा, डायबिटीज जो प्रेवलेंस है उससे बचाने की बात करता है. इसी के साथ आपके पास है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर्स, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक इन 2010. Now diffusing the ticking time bomb called the diabetes. तो यहाँ पे अब राइटर एक रिपोर्ट के जरिए बोलता है कि जो आपके पास केसेस है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं टाइप आई एम सॉरी डायबिटीज के. तो जून 2023 a study conducted by the Madras Diabetes Research Foundation in the collaboration with Indian Council of Medical Research and Union Health Ministry revealed that 11.4% of India's population or 10.3% people are living with the diabetes and 15.3% of the populations are pre-diabetic. और 28.6% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी आपके पास ओबेस कैटेगरी में आती है. नाउ कमिंग टू दिस सेकंड टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक, स्टबल बर्निंग. यूजुअली क्या होता है आपके पास पंजाब जैसा जो स्टेट है या फिर हरियाणा जैसा स्टेट है, जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून जा रहा होता है, यानी कि सितंबर का जो महीना होता है, यहाँ पे इनको जो राइस की जो खेती उसकी पूरी तरह से कटाई कर चुके होते हैं, बट उसके कुछ रेजिड्यूज जो है यहाँ पे बच जाते हैं. और अगले ही महीने जैसी सर्दियां आने वाली होती है अक्टूबर नवंबर में, इनको गेहूं यहाँ पे उगाने होते हैं, दैट इज वीट की खेती इनको करनी होती है. तो इनके पास समय कम होता है. इसकी वजह से ये जो राइस के जो रेजिड्यूज है इनको ये जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है पोल्यूशन दिल्ली और आसपास के स्टेट्स के अंदर. उसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम या फिर पराली की जो प्रॉब्लम है वो. अब स्टबल बर्निंग की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है आपके पास? सबसे पहली प्रॉब्लम जैसे हमने बात करी पोल्यूशन की, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो, हीट पेनिट्रेशन आपके पास ज्यादा हो सकता है.
ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, आप टेक्नोलॉजी यूज करो, जैसे कि आपके पास टीएचएस काफी ज्यादा न्यूज में था, ये दैट इज टर्बो हैप्पी सीडर। आप ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो। ओके, तो यही था आज का पेपर में, बहुत ही छोटा डिस्कशन था। प्लीज यूटिलाइज, अगर कभी ऐसा होता है कि वीडियो छोटी आती है या फिर न्यूज ज्यादा कवर नहीं होते या रिपीटेड आर्टिकल्स होते हैं, आप अपना वो जो समय है, आप अपनी जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हो। हार्डली आपके पास बहुत ही कम समय है, 6 महीने है, आप अपने ऑप्शनल को टाइम दीजिए, उसको रिवाइज करिए, एथिक्स को रिवाइज कीजिए, ऐसे को एक बार देख लीजिए, और जीएस को आप साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।